of class 8. Today I am going to start the second lesson, that is tsunami. And as you know, and I think you know, and you have also heard about tsunami, what kind of natural disaster it is. It is a very dangerous, and what stories, what is about here written, we are going to explain, we are going to learn. A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquakes under the sea. एक सुनामी एक बहुत शक्तिशाली लहर है, पानी का लहर है जो समुद्र के नीचे होने वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होता है. Listen, it is caused by the earthquake that occurs under the bed of sea. अर्थात समुद्र के नीचे जब भूकंप आती है तो उससे जो प्रतिक्रिया होती है, वट एवर रिएक्शन इज एट दैट टाइम, जो प्रतिक्रिया होती है उससे पानी की बहुत तेज लहर उठती है जो समुद्र के तट तक वो आगे की ओर बढ़ जाती है, और ये जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को कहते हैं सुनामी. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Look here, 26 दिसंबर 2004 को थाईलैंड में और भारत के कुछ भागों में जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी. दैट ए सुनामी हिट द सम पार्ट्स ऑफ India like Andaman and Nicobar Islands, also the coastal areas of Tamil Nadu and completely Thailand on 26 December 2004. Here are some stories of courage and survival. Now हम लोग we are going to know some stories of that time that had happened and who that had happened. That means some people were very courageous in this situation, and also some people survived ड्यूरिंग दिस नेचुरल डिजास्टर. इस प्राकृतिक आपदा के समय में कुछ लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाया और कुछ लोग बच गए. तो कैसी बहादुरी और जीवन वो पुनः पाने की जो कहानी स्टोरीज है हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग? क्या जानवर ने कभी महसूस किया कि कोई सुनामी आ रही है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. कुछ कहानियां बताती है कि उन्होंने महसूस किया, यानी उन्हें यह महसूस करने की, अर्थात जानवरों में यह महसूस करने की क्षमता है. दे हैव एबिलिटी, द एनिमल्स हैव एबिलिटी टू सेंस दैट सम डेंजरस नेचुरल डिजास्टर वाज कमिंग और गोइंग टू अकर. अर्थात कुछ प्राकृतिक घटनाएं होने या प्राकृतिक विपदाएं आने जा रही है, ऐसा जानवर पहले ही महसूस कर लेते हैं. These stories are all from Andaman and Nicobar archipelago. यह सभी कहानियां अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से ली गई है. All these stories have been taken from Andaman Nicobar Islands. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. Ignatius कछाल की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे. That means Ignatius was working as a manager in a cooperative society in Kachal, that is in Andaman and Nicobar Island. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. उनकी पत्नी ने उन्हें सुबह 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसने कुछ भूकंप जैसा महसूस किया. That means when her wife felt some kind of earthquake, she wake her husband up at 6 a.m. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने ध्यानपूर्वक अपने टेलीविजन सेट को टेबल से उतारकर नीचे रखा, और नीचे जमीन पर रखा ताकि यह न गिरे और न टूटे. Then the family rushed out of the house. तब पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया. When the tremors stopped, जब यह भूकंप के झटके रुके, they saw the sea rising. उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा. They saw the sea rising. उन्होंने समुद्र को उठते हुए देखा. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. इस शोरगुल में
उनके दोनों बच्चों ने उनके नाना के और मामा के हाथों को पकड़े और विपरीत दिशा में दौड़ पड़े. In this situation, when everything was disturbed, the two children of his family caught hold of their relatives and they ran towards the opposite direction of the wave. He never saw them again. उन्होंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा. His wife was also swept away. उनकी पत्नी भी बह गई. That means her wife was also swept away in the wave. Only the 3 other children who came with him were saved. Only 3 other children who came with him were saved. बाकी 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे, दूसरे बच्चे जो उनके साथ आए थे, वही बच गए थे. संजीव was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. संजीव एक पुलिसकर्मी थे जो निकोबार आइलैंड्स के कछाल में नौकरी कर रहे थे, अपना जॉब कर रहे थे. He was working as a policeman in the Nicobar in Kachal at Kachal in Nicobar groups of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. किसी तरह उन्होंने अपने पत्नी और अपने छोटी बेटी को इन लहरों से बचाने में सफल हुए. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. तब उन्होंने अतिथि गृह के रसोइया जॉन की पत्नी की चिल्लाने की आवाज को सुने. Then all of a sudden he listened the crying of John's wife, and Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. And seeing this, he jumped in the water to rescue her. उसे बचाने के लिए वो पानी में कूद गए, but they were both swept away. और दोनों ही पानी में बह गए. 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. Look here, देखिए 13 साल की मेघना अपने माता पिता और 77 दूसरे लोगों के साथ पानी में भाग गए. 13-year Meghna along with her parents, also with 77 other people, all of them swept away in the wave of the tsunami. She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door. वह 2 दिन तक पानी में तैरती रही, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ते हुए. लकड़ी चूंकि पानी में डूबता नहीं है, तो उसे एक लकड़ी का दरवाजा मिला, उसे वो पकड़कर 2 दिन तक पानी में वह तैरती रही. 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her. 11 बार वह राहत के पहुंचाने वाले हेलीकॉप्टर को अपने ऊपर देखी, परंतु उन लोगों ने उसे नहीं देखा. That means whenever she saw the helicopters over her head, but the persons in the helicopter did not see her. She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze. और उसे लहर ने ही उसे छोड़ तो ला दिया था और उसे निराशा के हालत में समुद्र तट पर टहलते हुए पाया गया था. What would be the situation? कैसी परिस्थिति रही होगी जब एक लड़की जिसके घर के सारे लोग पानी में बह गए हों, वह लकड़ी के दरवाजे के सहारा लेते हुए किसी तरह तट पर आई और अकेले ही समुद्र के तट पर टहल रही हो. Almas Javed was 10 years old. Almas Javed 10 साल का था. That means Almas was of 10 years. She was a student. लड़की थी. Sorry, she was a girl. Almas Javed. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. She was a student of Carmel Convent in Port Blair. उनके पिता वह पोर्ट ब्लेयर के कार्मेल कॉन्वेंट की छात्रा थी. Where her father had a petrol, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था. That means Almas Javed was a student of Port Blair, Carmel Convent of Port Blair, and her father had a petrol. Her father was in the business of petrol pump. Her mother Rahila's home was in नानकावरी आइलैंड, और उनकी माँ राहिला का घर नानकावरी द्वीप में था, ये आइलैंड में था. द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और पूरा परिवार ही क्रिसमस मनाने वहाँ गया था. When the tremors came early in the morning, जब सुबह झटके आए, भूकंप के झटके आए, the family was sleeping, पूरा परिवार सोया हुआ था. Almas father saw the sea water recede. Look here. ना अल्मास के पिता ने समुद्र के पानी को नीचे जाते हुए पहले देखा. He understood that the water would come rushing back with great force.
वो समझ गए कि अब पानी बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आएगा। वो समझ गए, he understood, seeing the water receding, he understood that now the water would come rushing back with great force, बड़ी ताकत के साथ पानी वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them in a safer place, उन्होंने सभी को जगाया और उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कोशिश की। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. जब वो लोग दौड़े भागे, उनके दादाजी को सिर पर किसी चीज से चोट लगी और वह गिर पड़े। Her father rushed to help him. उसके पिता उसकी मदद करने के लिए दौड़े। Then came the first giant wave that swept both them away. तब विशाल लहर आया और उन दोनों को ही बहा ले गई। तब विशाल लहर आई और उन दोनों को ही बहा ले गई। That means the great wave of tsunami swept them away. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. Alma's के माँ और मौसियाँ या चाचियाँ जो को चाचियाँ एक नारियल के पेड़ के पत्तों पर लटकते हुए और उसे पुकारते हुए खड़े थे या लटके हुए थे। A wave uprooted the tree and they too were washed away. एक लहर ने उस पेड़ को ही उखाड़ दिया और वे लोग भी लहर में बह गए। Almas saw a log of wood floating. Almas ने एक लकड़ी के टुकड़े को तैरते हुए देखी। She climbed onto it. वो उस पर चढ़ गई। Then she fainted. तब वो बेहोश हो गई। When she woke up, जब वो जगी, she was in a hospital in Komarta. तब वो कमाटा के एक अस्पताल में थी। Look, when all the family was swept away, she caught a wooden log and also climbed on it, got fainted, but when she came to senses, she found herself in a hospital of Komarta. From there, she was brought to Port Blair. वहाँ से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। The little girl does not want to talk about the incident with anyone. वो छोटी लड़की इस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं चाहती है। She was so much depressed. वो इतने निराश हो गई, इतने शॉक्ड हो गई कि वो उस घटना के बारे में किसी से बात करना नहीं करना चाहती है। She is still traumatized. अभी भी वह है ना निराशा की हालत में है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। Now the second part. Tilly Smith is a British schoolgirl was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Look here. Tilly Smith अब बहुत से लोगों को बचाने में सफल हुई जब सुनामी ने थाईलैंड के फुकेट तट पर आई। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. यद्यपि उसे बहुत सारे पुरस्कार मिले, उसके माता पिता ने उसे टेलीविजन पर साक्षात्कार देने या उसे किसी वीरांगना साबित करने की कभी कोशिश नहीं की, उसकी अनुमति नहीं दी। Why do you think that took that decision? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा निर्णय उन्होंने क्यों किया? Now here is a story from Thailand. अब यह एक थाईलैंड की कहानी है। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. स्मिथ परिवार साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थे। वे दक्षिणी थाईलैंड के एक समुद्री तट के एक रिसोर्ट में, एक होटल में क्रिसमस मना रहे थे। टिल्ली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल। टिल्ली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल की छात्रा थी। हर सिस्टर वाज 7 years old. उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वेयर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, और उसके माता पिता थे पेनी और कोलिन स्मिथ। इट वाज 26 दिसंबर 2004। यह 26 दिसंबर 2004 की घटना। डेडली सुनामी वेव्स वेयर ऑलरेडी ऑन देयर वे। भयानक सुनामी लहरें अपने रास्ते में थी, यानी वो लोग आ रही थी, तेजी से आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। वे सब उसी सुबह उत्तरी सुमात्रा के में एक भीषण भूकंप के कारण वह अभी आगे बढ़ी थी, मतलब वो उत्पन्न हो गया था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ ने याद करते हुए कहते हैं कि पानी फूल रहा था, बढ़ रहा था और वो आगे की तरफ आ रही थी। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो तट था वो छोटा होते जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। But Tilly Smith
सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, परंतु टिली स्मिथ ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। उनके उसके दिमाग में एक भूगोल के एक पाठ के बारे में याद आ रही थी, जिसे वो यहाँ आने के 2 सप्ताह पहले इंग्लैंड में पढ़ी थी या सीखी थी। जब वह अपने परिवार के साथ थाईलैंड आई, उसके 2 सप्ताह पहले वो अपने इंग्लैंड में अपने क्लास में ज्योग्राफी का एक चैप्टर अध्ययन की थी। उस चैप्टर उसके दिमाग में आ रहे थे। दैट मीन्स शी हैड लर्न समथिंग इन ज्योग्राफी क्लास इन इंग्लैंड, एंड व्हेन शी सॉ द वेब कमिंग और स्वेलिंग, इट केम टू हर माइंड that this was similar to that incident. Tilly saw the sea slowly rise and start to form, bubble and form whirlpools. लो, टिल्ली ने समुद्र को उठते हुए ना, झाग बनाते हुए, है ना, और जैसे हुलपुल की तरह घूर्णन करते हुए उन्होंने महसूस किया, देखा। She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसने याद आया कि उसने सुनामी का ऐसा ही वीडियो एक क्लास में देखी थी जो 1946 में हवाईयन द्वीप में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसके ज्योग्राफी के शिक्षक ने उन्हें उस वीडियो को क्लास में दिखाए थे, एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उन्हें बताया था कि सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी या जमीन खिसकने के कारण भी उत्पन्न होते हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली अपने परिवार पर चीखने लगी ताकि वह समुद्र तट से दूर हटे। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वह समुद्र के नीचे के भूकंप के बारे में बात की। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। उसकी माँ पेनी ने कहा कि वह बहुत पागल की तरह हुए जा रही थी। आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज। मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, परंतु लड़की को इतना डरा हुआ देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। मुझे लगा कुछ गंभीर होने जा रहा था। मुझे लगा कि कुछ गंभीर होने जा रहा था। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। तिल्ली का परिवार उसे और उसकी बहन को ना होटल के स्विमिंग पूल तक ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, ना, और बहुत से अन्य पर्यटक भी उनके साथ ही तट को छोड़ दिए। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। तब ऐसा लगा जैसे उनके पीछे पूरा समुद्र ही उठकर आ रहा हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चीख रही थी, भागो। द फैमिली टूक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और पूरा परिवार ने होटल की तीसरे मंजिल में आश्रय लिया। द बिल्डिंग विच स्टूड द सर्ग ऑफ 3 सुनामी वेव्स। और वह भवन 3 सुनामी लहरों को बर्दाश्त किया। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वह तट पर ही रहे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वह जीवित नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। स्मिथ परिवार ने दूसरे पर्यटकों से मिले जो अपने पूरा परिवार ही खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली और उसके उस ज्योग्राफी पाठ का धन्यवाद है। दे हैड बीन फॉरवार्ड, क्योंकि वो उन्हें सूचना मिल गई थी, वो उसे सावधान हो गए थे। दैट मीन्स दे हैड बीन केयरफुल रिगार्डिंग दिस। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिली अपने इंग्लैंड के अपने स्कूल को वापस चली गई, एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग, और इस भयानक कहानी को अपने दोस्तों से बताई। नाउ स्टूडेंट्स, टुमारो आई विल कंप्लीट द लेसन in my next video, and enjoy this video, watch this video, try to understand, and if you find any difficulties, then call me or send me your problems in my personal WhatsApp number. Thank you.